ناظرین السلام علیکم. خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر. سنکرانتی سے راشن کارڈ دہندگان کو باریک چاول فراہم کیے جائیں گے. کسانوں کو 500 روپے بونس. BRS پارٹی کسانوں کو اشتعال دلا رہی ہے. ٹی ناگیشور راؤ کی پریس کانفرنس. نومبر کو وزیر اعلیٰ کریں گے ورنگل کا دورہ. آرٹس کالج میں جلسے عام. چیف سیکرٹری نے لیا انتظامات کا جائزہ. ہفتے کا دن موسی ندی طاس میں ایک رات قیام کرنے کشن ریڈی کا اعلان. وزیر اعلیٰ کا چیلنج قبول. BRS اور کانگریس حکومت میں کوئی فرق نہیں. قدیم ملک پیٹ میں راشن کے چاول کی غیر قانونی منتقلی ناکام. 60 کنٹل چاول ضبط. بہادر پورے کے حدود میں ملاوٹی ادرک لہسن کے گودام پر دھاوا. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں. QMax دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال 3 فلورز پر مشتمل. 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال. آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں. وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر. منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن QMax کوہینور بینکٹ ہال ٹولی چوکی حیدرآباد. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامر، ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی. انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے. 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ ٹولی چوکی حیدرآباد. اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان. جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ. 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ. اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر. آپ کا بھروسہ ہماری پہچان. جوہری، crafted just for you. Gold diamonds and platinum. ٹولی چوکی حیدرآباد. سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں. بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب. وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ نے کہا کہ سنکرانتی سے راشن کارڈ دہندوں کو باریک چاول فراہم کیا جائے گا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ گروکل اور بہبودی تعلیمی اداروں کے طلباء کے لیے بھی باریک چاول فراہم کیا جائے گا. وزیر سول سپلائز نے یہ بھی کہا کہ باریک چاول پر 500 روپے بونس کے اعلان کی وجہ سے باریک چاول کی کاشت میں اضافہ ہوا ہے. پہلے 25 لاکھ ایکڑ پر کاشت ہوا کرتی تھی، اب 40 لاکھ ایکڑ پر باریک چاول کی کاشت ہوئی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ BRS پارٹی کسانوں کو اشتعال دلا رہی ہے. پچھلی BRS حکومت نے معاشی نظام کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا تھا.
कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से जो भी वादे किए उसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई मुफीद मशवरा है तो उसे कबूल करने के लिए हुकूमत तैयार है। बीजेपी को किसानों से मोहब्बत है तो धान की नमी को लेकर जो कवायद वज़े किए गए हैं उसे तब्दील किया जाए। సుమారు గ్రామానికి ఒక కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. తెలంగాణలో ఎన్ని రెవెన్యూ గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయో కుడి ఎడంగా అన్ని గ్రామ పంచాయతీల్లో కూడా కొనుగోలు జరుగుతుంది. ఉత్పత్తి పెరిగింది, అదేవిధంగా కొనుగోలు పెరిగింది, పేమెంట్లు పెరిగినాయి. అయినా సరే ధాన్యాన్ని 17% మాయిశ్చర్కి అమ్మాలి అంటే రైతు పొలంలో నుంచి తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీద ఆరబోసుకోవాలి. 3-4 రోజులు ఆరబోస్తే తప్ప మాయిశ్చర్ 17%కి రాదు. అదేవిధంగా బయటికి ఓపెన్ మార్కెట్లో అమ్ముకోవటానికి ఆరబోయాల్సిన పని లేదు. ఆ ఆరబోసిన రైతుల దగ్గరికి పోయి వీళ్ళు కాకిగోలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అధికారం పోయినంత మాత్రాన అంత అల్లకొల్లం అవ్వాల్సిన పని లేదు, అంత ఆదుర్దా పడాల్సిన పని లేదు, అంత ఆతృత పడాల్సిన పని లేదు. సరే వాళ్ళ పార్టీ విత్ ది పార్టీలో వైరుధ్యాలు ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆధిపత్య పోరు ఉండొచ్చు, లేకపోతే రెండు పార్టీల మధ్య ఆధిపత్య పోరు ఉండొచ్చు, ఈ రాష్ట్రంలో తర్వాత స్థానం ఎవరు ఆక్రమించుకోవాలనే కోరికలు ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ పార్టీలో ఎవరు అది మళ్ళీ లైమ్ లైట్లో ఉండాలనే ఆధిపత్య పోరు ఉండొచ్చు. కానీ మీ ఆధిపత్య పోరు కోసం రైతాంగాన్ని బలిపెట్టాలనో రైతాంగాన్ని वजीर आला रेवंत रेड्डी 19 नवंबर को वरंगल का दौरा करेंगे। रियासती हुकूमत 1 साल की तकमील के मौके पर अवाम की हुकूमत जश्न के हिस्से के तौर पर कालकेश्वरम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला SHG के साथ तबादले ख्याल करेंगे। आर्ट्स कॉलेज में जलसे-आम होगा। वजीर आला के दौरे के लिए जाने वाले इंतजामात का चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला सतही इजलास में जायजा लिया। इजलास में वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा के अलावा दूसरे मौजूद थे। इजलास में शांति कुमारी ने रूट मैप, डाइस के इंतजामात, पार्किंग और दीगर लॉजिस्टिक मसाइल पर अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। कोंडा सुरेखा ने अहदेदारों से कहा कि वो मुनासिब इंतजामात करें। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार किया जाए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कंटोनमेंट के इलाके में एलिवेटेड कॉरिडोर के काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कंटोनमेंट इलाके के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक इलाके की तरक्की नहीं हुई है। डिफेंस के ताउन से रियासती हुकूमत इलाके में कॉरिडोर तामीर कर रही है। इस कॉरिडोर से करीमनगर, आदिलाबाद, सिद्दीपेट के अवाम को शहर आने के लिए काफ़ी कम वक्त लगेगा। बहुत जल्द इस कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा जाएगा। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों की तरक्की और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। हुकूमत यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कायम कर रही है। यहाँ के ग्राउंड्स को तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे से मुताल्लिक किसी को शक करने की ज़रूरत नहीं है। सियासी साजिश करने वाले इस तरह के शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। सर्वे से कोई स्कीम को कट नहीं किया जाएगा। ప్రజలు తప్పకుండా నియంతృత్వం నుంచి ప్రజాస్వామ్యంకు వచ్చి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి నడుస్తుంది. ప్రజాస్వామ్యం నడవంగా కూడా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి నడుస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు ఒక మాట చెప్తా, మల్లన్న సాగర్లో ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు మహిళలను చూతకుండా ప్రజల్ని కొట్టిండ్రు. కానీ ఏ ఒక్క పౌరుడు ఆ పౌరుడిని మేము రెచ్చగొట్టి మేము దాడి చేయించాలి అధికారుల మీద. నోట్ దిస్ పార్ట్ ప్లీజ్ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇవాళ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने संगारेड्डी जेल पहुंचकर कोड़ंगल वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किसानों से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि लागत चरला के किसानों पर 3rd डिग्री का तरीका इस्तेमाल किया गया। कोड़ंगल के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, विकाराबाद SP इस तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलविस हैं। KTR ने इंकशाफ किया कि किसानों के हाथों और पैरों पर जख्म पाए गए। जब उन्होंने किसानों से पूछा तो ये सब कुछ मजिस्ट्रेट को क्यों नहीं बताया, तो किसानों ने कहना था कि उन्हें धमका गया था कि घर वालों को भी ऐसे ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। KTR के हमरा TRS के लीडर सत्यवती राठौड़, C प्रभाकर, अनिल जाधव, रमावत रविंद्र कुमार, जॉनसन नायक के अलावा दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि विकाराबाद कलेक्टर पर हमले के सिलसिले में 50 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है। ఒక ఆయన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఆయన కూడా ఉన్నాడు. ఆయన కూడా పాపం ఇంట్లో ఉన్నాడు. వాళ్ళందరినీ పిచ్చి కొట్టుడు కొట్టినారు, చిత్రహింసలు పెట్టినారు, 3rd డిగ్రీ టార్చర్ పెట్టినారు. కొడంగల్ CI
కొడంగల్ ఎస్ఐలు, వికారాబాద్ ఎస్పీ ఆయన పేరు నారాయణ రెడ్డి, వీళ్ళంతా కలిసి వీళ్ళను చిత్రహింసలు పెట్టినారు. 3 గంటలు కొట్టినారు. ఒక్కొక్కరిని చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడే మా అక్క చెప్పినట్టు కాళ్ళు చేతులు కమిలిపోయి ఉన్నాయి. మేము అడిగినాం, మరి ఎందుకు మేజిస్ట్రేట్ ముంగట చెప్పలేదు, కొట్టినాడు ఎందుకు చెప్పలేదు అన్నాం. మీరు చెప్తే మళ్ళా కొడతాం, మీ ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కొడతామని చెప్పినారు. మిమ్మల్ని మళ్ళా కొడతాం, జైల్లో కొడతాం, ఇంటికి పోయి మీ ఇంటోళ్ళని కూడా కొడతామని చెప్పినారు. ఎంత అమానవీయంగా, ఎంత క్రూరంగా అంటే ఇంటి మీదికి వీళ్ళనేమో జైలుకు పంపినారు. ఇంటి మీదికి బందిపోట్లను పట్టుకరానికే, ఒసామా బిన్ లాడన్ లాంటి తీవ్రవాదులను పట్టుకరానికే ఎట్లయితే కూంబింగ్ ఆపరేషన్ చేస్తారో 100 మంది పోలీసులు వచ్చి ఇంటింటికి పోయి తలుపులు దర్వాజాలు తన్నుకుంటూ, గుద్దుకుంటూ, పగలగొట్టుకుంటూ, తాగి బూతులు మాట్లాడుతూ కొంతమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులు, నేను పోలీసు వాళ్ళు అంటలేను, ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కొంతమంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు తాగి బూతులు మాట్లాడుతూ ఆ ఇండ్ల మీద దాడి కూడా చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న మహిళలు, అక్కడ ఉన్న ముసలోళ్ళని భయభ్రాంతులు, పిల్లల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా, భూమి మీద ఎవడు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండడానికి రాలే. నీ పదవి కూడా 5 ఏళ్ళే. అందులో మీ ఢిల్లీ వాళ్ళ కోపం వస్తే రేపో ఎల్లుండి తీసి పారేసినా కూడా దిక్కులేదు నీకు. నేను ఒకటే గుర్తు చేస్తున్నా, రేవంత్ రెడ్డి చక్రవర్తివి కాదు, నువ్వేమి రాజువు కాదు, నువ్వేమి పెద్ద నియంతవు కాదు. నీలాంటి వాళ్ళు చాలామంది వచ్చిండ్రు, చాలా మంది వస్తారు ఇంకా భవిష్యత్తులో. मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि मूसा नदी ताज़मी एक रात क़याम करने के वज़ीर आला के चैलेंज को वो कबूल करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, हफ्ते की रात मूसा नदी में क़याम करेंगे, 3 महीने तक भी क़याम करने को तैयार हैं। अवाम के साथ उनके मकान में खाना खाएंगे, गरीब अवाम के मकान में क़याम करेंगे। BRS हुकूमत और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में अमन व कानून की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के हल्के कोड़ंगल में कलेक्टर पर हमला किया जाता है। रियासत कहाँ जा रही है? वोट बैंक की पॉलिसियों की वजह से तेलंगाना की तरक्की थम चुकी है। रियल इस्टेट का कारोबार ठप हो चुका है। तिजारत के शोबे का हुकूमत पर से एतमाद खत्म हो चुका है। रियासत में सरमाकारी नहीं हो रही है। कांग्रेस की आला क़यादत के लिए तेलंगाना ATM बन चुका है। रियासत के अवाम को देने के लिए पेंशन की रकम नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और BRS सिर्फ लफ्जी सियासत में मसरूफ हैं, इससे रियासत के अवाम का कोई लेना देना नहीं है। वजीर सनअत श्रीधर बाबू ने कहा कि हैदराबाद में एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जा रहा है। 500 अफराद को मुलाजमतों के मौके मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना सरमाकारी के लिए मौजू मुकाम है। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली मराहत को देखकर कंपनियां आगे आ रही हैं। कंपनी के CEO विनीत के वफ्द ने सेक्रेटेरिएट में श्रीधर बाबू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये कंपनी अहम ऑटोमोबाइल कंपनियों को सेमीकंडक्टर सरबराह करेगी। रियासती वजीर ने बताया कि सरमाकारों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में हुकूमत आगे है। सिखों के मजहबी पेशवा गुरु नानक जयंती के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया। जुबली हिल्स में अपनी क़यामगाह पर वजीर आला ने उनकी तस्वीर पर फूल डाले। इस मौके पर वजीर आला के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान S श्रीरंगम ने कहा कि तेलंगाना में निचली सतह का सियासी खेल KTR ने शुरू किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अगले 4 महीनों में हर माह में एक नया स्काम सामने आएगा। किसानों को हथकड़ियां डालने की तारीख BRS की रही है। उन्होंने कहा कि आलूदगी से पाक फार्मा विलेज कायम करने के लिए हुकूमत गौर कर रही है। लागा चरला के वाक़े की जिम्मेदारी KTR को कबूल करनी चाहिए। कलेक्टर को कत्ल करने की कोशिश करने के लिए काफ़ी हिम्मत है। KTR बराबर जेल को जाएंगे। कालेश्वरम में बदनवानी मंजर पर आई तो KCR भी जेल जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान C दयाकर ने कहा कि KCR के 10 साल की हुकूमत में बेरोजगारों के साथ लापरवाही की गई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने से पहले 50,000 मुलाजमतों पर तखर्रात किए गए। 12 साल के बाद ग्रुप 1 इम्तिहान मुनक्किद करने वाली कांग्रेस पार्टी है। 30 साल के बाद जॉब कैलेंडर तैयार किया गया। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का तकर्रुर किया गया। अवामी हुकूमत में बेरोजगारों को रोजगार मिला है। C दयाकर ने कहा, KTR को बेरोजगार सबक सिखाएंगे। जू पार्क से आरामगढ़ तक फ्लाईओवर का काम जारी है। ताड़बन के पास रैंप की तामीर भी हो रही है।
इस रैंप की तामीर के सिलसिले में जो रुकावटें आ रही थीं, इस सिलसिले में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ माना किया। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम की शिकायत की भी समाअत की। मज़कूरा दरगाह के पास मुकामी जायदाद मालिक की तरफ से मलकी तामीर की जा रही थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की तामीरी काम न करने की ताकीद की गई है। दरगाह के पास शेड तामीर करने के लिए तखमीना भी तैयार किया गया है। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद कादर और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने GHMC ACP टाउन प्लानिंग मजीद के साथ मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। मिर्जा रहमत बेग ने ज़ेर इल्तिवा कामों के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से ACP टाउन प्लानिंग को वाकिफ कराया। रुकन कौंसल ने दोपहर में राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के अशोक विहार कॉलोनी का तफसीली दौरा किया। इस दौरे के दौरान भी मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की गई। रुकन कौंसल ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को मुख्तलिफ कामों की निशानदही कराई और उनकी जल्द यकसुई पर जोर दिया। निर्मल जिले के कानापुर के जंगलात में शेर नजर आया है। इस वीडियो के मज़र-ए-आम पर आने के बाद महकमे जंगलात का अमला भी चौकस हो गया है। हालिया चंद दिनों के दौरान श्री सेलम, भाईबे, आदिलाबाद के जंगलाती इलाके और निर्मल में जंगली जानवरों के नजर आने के कई मनाजिर सामने आए हैं। अब यहां शेर के नजर आने के बाद महकमे जंगलात की तरफ से चौकसी बढ़ती जा रही है। आसमानगढ़ फीडर के तहत मुख्तलिफ मकामात पर दरख्तों की कटवाई के पेश नज़र बरखी की सरबराही मुख्तलिफ औकात में मजदूद रहेगी। दुर्गानगर के तहत सुपर मार्केट, बुल्डानमा बस्ती, श्रीपुरम कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, अरोरा कॉलेज, अकबर टावर, फूलबाग, नलगुंडा क्रॉस रोड, कालाडेरा पेट्रोल पंप का अखबी इलाका, फुटबॉल ग्राउंड के पास सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक बरखी की सरबराही मजदूद रहेगी। संकेश्वर बाजार, सरस्वती नगर, कोदंडराम नगर, समेती नगर, सनशाइन कॉलोनी, मूसा नगर, कमल नगर, सरदार जी बिल्डिंग, गवर्नमेंट सिटी मॉडल स्कूल, आदर्श नगर, सरस्वती शिशु मंदिर, सरुनगर, सिंगारनी कॉलोनी के इलाकों में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बरखी की सरबराही मजदूद रहेगी। सौजोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस ने किशनबाग के असद बाबा नगर में गैर कानूनी तौर पर मिलावटी अदरक लहसुन के जखीरे का पर्दाफाश किया है। बताया गया कि जब्त किए गए अदरक लहसुन के नमूने मुआयने के लिए भेज दिए जाएंगे। गोदाम का मालिक अमीर अली मफरूर बताया गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। आवाम से बार बार इस बात की अपीलें की जाती हैं कि इस तरह के मिलावटी अशिया की खरीदारी से गुरेज करें, खास तौर पर डीलर से जो कि दुकानों में इस तरह की अशिया रखते हैं। उन्हें भी इंतबाह दिया है कि अगर मिलावटी अशिया का इस्तेमाल किया गया और इसे फरोख्त किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साउथ ईस्ट टास्क फोर्स ने राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया है। खदीम मलकपेट वाहिदनगर में मुसद्दक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए 60 कुंटल चावल बशमोल गेहूं को भी जब्त किया गया। इस सिलसिले में फारूक नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मसूद मफरूर बताया गया है। चादरघाट पुलिस को इस तरह की सरगर्मियों की मुबैना इत्तला के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि टास्क फोर्स को यह कार्रवाई करनी पड़ रही है। काचीगुड़ा पुलिस ने मोबाइल फोन छीनने की वारदातों में मुलविस 2 अफराद बशमूल ज्वाइनाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ज्वाइनाल के अलावा नल्लूर के साकिन शेट्टी राकेश को गिरफ्तार किया गया। ज्वाइनाल इससे पहले भी 4 वारदातों में मुलविस बताया गया है। दूसरा मुलजिम शेट्टी राकेश भी बाज़ वारदातों में मुलविस बताया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 4 सेलफोन और 1 टू व्हीलर को जब्त किया है। एसओटी की टीम ने मुख्तलिफ वाक़यात में तकरीबन 22 किलो का गांजा जब्त किया है। मलकाजगिरी रेलवे स्टेशन पर भी गांजा जब्त किया गया है। उड़ीसा से बज़ेर ट्रेन गांजा लाया गया था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर एसओटी की टीम ने यह गांजा जब्त किया। राजमंदरी के साकिन अहमद अली को तहवील में लिया गया है। बताया जाता है कि धूलपेट के साकिन शख्स को यह गांजा मुंतकिल किया जा रहा था। दूसरी तरफ धूलपेट में वाक़े होटल के पास भी 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 4 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। गिरफ्तार शुदगान के नाम गणेश, राहुल सिंह, अंकित और लड्डू बताए गए हैं। मेडचल जिले में रेणुका तिरुमला शॉप की दुकान में सरके की वारदात पेश आई है।
दुकान में मौजूद सीसीटीवी पर इसका मंजर कैद हुआ है। दुकानदार ने भी शिकायत दर्ज कराई कि 8,000 रुपए की नकद रकम और शराब की बोतलों का सरखा किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। संक्रांति से राशन कार्ड दहिंदगान को बारीक चावल फराहम किए जाएंगे। किसानों को 500 रुपए बोनस। BRS पार्टी किसानों को इश्तियाक दिला रही है। टी नागेश्वर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्नीस नवंबर को वजीर आला करेंगे वरंगल का दौरा। आर्ट्स कॉलेज में जलसे-आम, चीफ सेक्रेटरी ने लिया इंतजामात का जायजा। हफ्ते का दिन मूसा नदी तास में एक रात कयाम करने किशन रेड्डी का ऐलान। वजीर आला का चैलेंज कबूल। BRS और कांग्रेस हुकूमत में कोई फर्क नहीं। खदीम मलकपेट में राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली नाकाम, 60 कुंटल चावल जब्त। बहादुरपुरे के हुदूद में मिलावटी अदरक लहसुन के गोदाम पर धावा। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।